Roji, we are finally in Amsterdam. Walking inside a fairy tale town. Roji, we are finally in Amsterdam. It never disappoints. That one over there is our hotel. We are staying in Hooftop area next to the Schiphol airport. And हमारे सामने क्या मस्त नज़ारे हैं, greenery everywhere. It was snowing since morning, like snowing really bad. अभी बज रहे हैं 11:45 and now we are headed towards Zaanstad. I've been there 3 times, but I'm really excited to show you guys how Zaanstad looks like. बहुत ही famous spot है next to the Amsterdam Center. वहाँ से ही approximately 15 minutes की ट्रेन है. It is one of the most beautiful iconic spots in near Amsterdam, and it is famous for its windmills and lot of local shops, cheese shops, wooden shoes वहाँ पे मिलते हैं. मतलब it is one of the oldest neighborhoods in Amsterdam. तो बहुत ही recently वो एक tourist hotspot बन चुका है. तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि अब कैसा दिखता है. I remember I was there 5 years back and there was literally nobody, but now I know that there are a lot of tour companies and tour groups that come to Zaanstad. So let's go and see if it's really worth the hype still. Let's go. बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि अभी तो आप कहाँ थे, अब आप कहाँ आ गए हो. But that is the beauty of traveling within Europe, where you can just take a train, sit in the train for 6 hours, take a nap, and then reach another country. No, everywhere. Yeah, quite chilly today. हवा भी चल रही है. Netherlands was my first country, by the way. The first country that I went outside of India was Netherlands back in 2018. एंड उसके बाद से एडवेंचर रुका नहीं, फिर तो चलते रहे. एंड जब भी मैं यूरोप आता हूँ, दिस इज माई 4th टाइम एंड आई एम अगेन बैक हेयर, बिकॉज मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि कहीं ना जाऊँ इट्स फाइन, बट आई हैव टू कम टू एम्स्टरडम वंस. एक बार छू करके वापस चले जाएंगे, इट्स फाइन. बट विल बी स्पेंडिंग लाइक 4 nights इन नेदरलैंड्स. तो लेट्स सी कैसा रहता है. You would be thinking कि आप सेम कंट्री इतनी बार क्यों जाओगे, बट आई वुड से इफ़ यू लाइक अ कंट्री, go for it. And we just wanted to enjoy our vacation and go somewhere we have been before, तो हमें navigation का उतना ज़्यादा झंझट ना हो, as opposed to what happens when you are in a new country. Started snowing again. Look at this. Let's go quickly. Let's take the train. And it started snowing within seconds. Look. Oh God. Except for the wet part. Everything is beautiful. We have the EU Rail Pass, which makes our travel so convenient. All you need to do is download the app आपके फ़ोन में, and जो भी जर्नी आपको एक्टिवेट करनी है, जर्नी एक्टिवेट करो, you get the QR code and you can travel anywhere using the EU Rail Pass. बेस्ट पार्ट अबाउट EU Rail Pass है कि हमारा पास जो है वो नेदरलैंड्स की लोकल ट्रेन्स में भी चलता है. उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा के बहुत सारे ट्रेन्स यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत सारे स्पॉट्स कवर करेंगे. We have just scanned our QR and now we are going towards the train station. We are finally at Zaanstad, one of the most visited area near Amsterdam, जो कि like I said, recent years has become very very famous. When I was here 4 years back with her, and उससे 5 साल पहले भी आया था मैं, तब ना इतना यहाँ पे ऐसी हालत थी कि मैं और मेरे फ्रेंड जब 5 साल पहले आए थे, we were walking here and literally there was no tourist, there was literally nobody. एंड जब हम प्रॉपर विंडमिल एरिया में पहुंचे तब जाके हमें कुछ टूरिस्ट नज़र आए, कुछ कैफ़ेज़ नज़र आए. नहीं तो इस एरिया में वॉक करके ना वी फेल्ट लाइक एज इफ वी आर वॉकिंग इन अ लोकल नेबरहुड. माइट नॉट बी करेक्ट कि आप ऐसे किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वॉक कर रहे हो, बट नाउ लुकिंग एट द क्राउड, लिटरली बहुत लोग आते हैं यहाँ पे. एंड अभी हमारे ट्रेन स्टेशन से भी बहुत सारे लोग निकले हैं, दे आर ऑल वॉकिंग टुवर्ड्स दिस एरिया. So it's like a close 7-10 minutes walk all the way to the main Zaanstad windmill वाला area. अभी हमने breakfast भी नहीं किया है and it is close to 12:30 already. And look at the snow. This is the reason we didn't get out of our hotel. सुबह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ है. So let's walk. कुछ ज़्यादा बर्फ नहीं गिरी हुई and you're so packed up. I am still cold. But look at these houses here. It is so beautiful. मतलब लगता है कि यार किसी ने एकदम, मतलब it just looks very posh to be honest. Yeah, and so well maintained. एंड पता है मैं यहाँ पे आने से पहले इस एरिया में भी एयरबीएनबीज देख रहा था. पर नाइट लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के एयरबीएनबीज हैं यहाँ पे. तो आप उससे लगा लो कि एरिया कितना ज़्यादा फेमस हो गया है. और वैसे भी लिमिटेड स्पेसेस ही हैं. दीज आर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज. Very well maintained, which is really rare to see in Europe now. ऐसा लग रहा है सफाई नहीं हो रही है सब जगह. नेदरलैंड्स में अभी तक ठीक है. अभी तक हमने आई थिंक
close to 17 days what we have spent in Europe, and हमारा honest reaction ये है कि Europe is not the same anymore. यूरोप में बहुत कुछ बदल चुका है, तो अगर आप यूरोप आना चाहते हो तो आ सकते हो घूमने के लिए, तो obviously still is very beautiful, बट वो जो एक वाइब हुआ करती थी ना आज से 5 साल 8 साल 7 साल पहले, वो अब नहीं है। हम लोग आते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों को देख के बड़ा खुश होते हैं, मॉडर्निटी, साफ़ सफाई। बट लुकिंग एट साफ़ सफाई का जो प्रॉब्लम है, गंदगी है हर तरफ आपको दिखेगा, बी इट जर्मनी, बी इट इवन इन वियना वी फाउंड लॉट ऑफ स्ट्रीट्स दैट वर डर्टी। बहुत हैरानी की बात होती है बिकॉज आप इन कंट्रीज से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट अब ठीक है, अब शायद यही रियलिटी है यूरोप की, एंड वी रियली होप दैट यूरोप गेट्स टू डू बेटर। और हमसे आप पूछो तो आई थिंक यूरोप को बीट कर रहा है अभी ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, ताइवान। हमें बहुत स्पॉइल कर दिया है। इतनी बड़ी कंट्री, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, उसके बावजूद इतनी साफ़ सफाई है कि यूरोप वगैरह सब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वी आर ऑल फार बिहाइंड नाउ। दिख गया है हमें एक स्टोर हॉट चॉकलेट का, एंड ऑब्वियसली वो मना नहीं कर सकती और हम उन्हें मना नहीं कर सकते, तो चलते हैं हॉट चॉकलेट ट्राई करने। बट एक चीज़ तो मैंने देखी है कि यहाँ पे कंपेयर टू द लास्ट टाइम देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैफेज दैट हैव कम अप, बिकॉज शायद लोकल्स को भी समझ में आ गया है कि इट्स अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया। There's a Spar as well, which is quite strange. There were no supermarkets before. नो स्पार था यहाँ पे, स्पार था, ये सब नहीं था, सब तो पूरा Cafe नहीं शांत था, था। Spar था last स्पार time. था, स्पार था। स्मेल्स लाइक चॉकलेट। जी वी फाउंड अ वेरी स्मॉल, वेरी क्यूट लिटिल स्मॉल स्टोर, जहाँ पे हम खड़े थे वहीं से हम अंदर आ गए। प्राइसेस काफ़ी अच्छे थे, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, वी थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई, सो वी हैव गॉट आवरसेल्व्स वन बनाना चॉकलेट केक, one chocolate dip stroop waffle, and one hot chocolate. I'm actually more excited about this one because if you know, this by the way looks at the size. This is the size of your face. It's actually not that big. It looks big, it's not that big. Yeah, so you should try this first. It's good, right? I'm so hungry. हमने breakfast नहीं किया and I can't believe this is my breakfast. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Insulin rush over and then you want to sleep. Hot chocolate is also here. It's quite fresh. It's very good. The chocolate is very good. I like the chocolate flavor, but it's banana cake, so it's dry. तो चलो हम खाते हैं इसको फटाफट, and we'll see you outside. Neither of us were actually hot chocolate lovers until my friend came to Bangkok and he had so much hot chocolate, and that's when I realized that it's actually a good drink. And वहाँ पे ना बहुत thick hot chocolate मिलती है, but these ones are not as thicker, but they look very rich. Hopefully you can see it. Definitely not sweet. अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है ज़ांसे सांस तक, वी स्टिल बीन वॉकिंग। ज़ांसे सांस का जो मेन एरिया है, जो मेरे जस्ट राइट बिहाइंड मी, पीपल दैट यू कैन सी ऑलरेडी वॉकिंग इन। बहुत सारे टूर ग्रुप से भी आते हैं, बट हमने अच्छी चीज़ क्या करी, हमने पहले से ही खा लिया फ्रॉम स्पार। बाकी सारे रेस्टोरेंट में था, बट देवर लाइक लॉट ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, अभी हमें उतना हेवी नहीं खाना था। दिस वन गुड थिंग अबाउट दिस स्पार दैट दे कैन हीट अप फूड फॉर यू, और अंदर बैठने की भी जगह है। तो वी एट वन पेस्टो चिकन पास्ता प्लस वी टुक वन बगेट विद क्रीम चीज़, एंड हमने खाया। नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स ज़ांसे खान। 14 यूरोज़ के आसपास हमने पे किया इधर, एंड अब जाते हैं ज़ांसे खान में वॉक करेंगे, एंड लेट्स सी कितने लोग होते हैं वहाँ पे। आपको याद है जब हम लास्ट टाइम आए थे ज़ांसे खान में, तो लिटरली कोई नहीं था, इट वाज जस्ट मी एंड हर, एंड नाउ आई ऑलरेडी सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर। So we are finally at the Zanskar Khan's village, and मैं यहाँ पे हूँ, and it's just too beautiful. Like overall जो It views is. है ना, मतलब look at the houses behind me, क्या गजब के खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ भी कह लो, it looks like you're walking inside a fairy tale town. हाँ, Looks beautiful. extremely beautiful, and हर बार आओ, हर बार वैसा ही वाइब है। क्लीनलीनेस भी इन्होंने प्रॉपर बना के रखी है, विच इज़ वेरी गुड। टूरिस्ट बढ़े हैं यहाँ पे, हाँ, टूरिस्ट स्पॉट है भाई ये। हाँ टूरिस्ट बढ़े हैं, बट इन्होंने मेंटेन करके रखा है पूरे एरिया को।
which is very good. This is museum. Yeah, it is almost 300 years old village. तो पता है ज़ांसिस कांस इन्होंने बहुत सारे ऐसे म्यूजियम एंड ऑल बना रखे हैं, बट लुक एट दिस प्लेस यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये विलेज में जब भी आओ तो लगता है कि यार अब कहीं पे तो हो, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, क्या गजब के नज़ारे हैं। यहाँ पे आप रहने के लिए मिले अगर, तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत जगह होगी। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। समर्स में और ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सारा, मतलब जितना हरा भरा होता है ना समर्स में और बढ़िया नज़र आता है। Beautiful. अगर यहाँ रुकने के लिए मिले तो आई थिंक आई शुड मूव हियर। Yeah, and then your job is just to cut the grass the entire day. पैसे पूरे मिलेंगे, यूरोप ही है, इनकम इक्वालिटी नहीं होगी यहाँ पे। तो जी जैसे ही आप ज़ांसिस कांस विलेज में एंटर करते हो, यू हैव द म्यूजियम राइट, उसी के सामने ही है यहाँ का सबसे पुराना एल्बर्ट हाइन। सुनने में आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एल्बर्ट हाइन इज़ अ वेरी बिग सुपरमार्केट चेन है इन नेदरलैंड्स। उनका ये फर्स्ट स्टोर है जो यहाँ पे ओपन हुआ था। अभी तो खैर उन्होंने बंद किया हुआ है, इट्स मोर लाइक अ म्यूजियम सॉर्ट ऑफ थिंग नाउ। पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग देयर नेक्स्ट टू इट एंड क्लिकिंग पिक्चर्स। मतलब क्या खूबसूरत है यार, ये क्या गजब की चीज़ बनाई है इन्होंने ना। मतलब This, by the way, is a functional store. It's just that कि वो It is आज close बंद to है. day, yeah. जो हम लोग बचपन में स्कूल टाइम में जब हम ड्रॉ करते थे ना कि एक फेरी टेल विलेज होता है, दिस इज द फेरी टेल विलेज, दिस इज द मोस्ट फेमस विलेज इन द नेदरलैंड्स। तो जी फाइनली वी हैव रीच्ड द वेरी फेमस, दीज विंडमिल्स आर एक्सट्रीमली फेमस बिकॉज यहाँ पे ही सारे टूर ग्रुप्स आते हैं। बट ऑब्वियसली नाउ दिस विलेज हैज बिकम सो पॉपुलर दैट एवरीवेयर यू गो यू विल फाइंड दीज विंडमिल्स। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इतनी भीड़ भी नहीं है, बट ठीक है, इट्स स्टिल फाइन। एंड इस प्लेस का जो एसेंस है ना वो अभी मेंटेन्ड है। आप अभी भी यहाँ पे भी आने के बाद बहुत, मतलब अंदर की तरफ फार्म्स में यू कैन गो इन एंड वॉक। हम भी वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे इतना विंडी है और पीछे पूरा फार्म बना हुआ है। इट एक्चुअली रेन्स अ लॉट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विंडीएस्ट एज वेल। आयरलैंड भी होता है विंडी, डेनमार्क भी है, आई थिंक नेदरलैंड्स भी काफ़ी विंडी है। पिछले 8 सालों में इस जगह को मैंने अपनी आंखों के सामने फ्रॉम अ नॉन टूरिस्टी प्लेस टू अ वेरी टूरिस्टी प्लेस बनते हुए देखा है। और अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो रियलाइज़ हो रहा है कि वाई a lot of people are visiting here. Yeah. It was beautiful, no doubt, but I think social media ने तब तक इसको इतना famous नहीं किया था। There's a spot behind us जहाँ पे windmills है and आप 7 यूरो 10 यूरो अलग अलग चार्जेस है दे के आप अंदर जा सकते हो। I don't know why people want to go inside a windmill. No, it's beautiful. It's a different thing. मतलब एक अलग experience होता है। हम लोग आए थे तो हम लोग गए थे, free of cost था, but not in this one. There's another But one. what is it entrance there. inside? यार वो पूरा प्रोसेस दिखाया कि कैसे विंडमिल काम करता है, कैसे उनका रोटर मशीन okay. काम करता है। बेसिकली पूरी मशीन विंडमिल पे काम करती है। Okay. सब But now कुछ they're windmill charging for it. हाँ, it's more like a tourist thing now. अगर मौका लगे तो ज़रूर आना ज़ांसिस कांस। Make sure that you visit ज़ांसिस कांस. It is definitely one of the most beautiful. हम लोग निकल गए फ्रॉम ज़ांसिस कांस, 3 stations away. We are now finally in Amsterdam Central. खूबसूरत है as usual. चलते हैं अब वॉक करके टुवर्ड्स डैम स्क्वायर, जो कि मेन एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के सीधे आप निकल जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ कैफेज अराउंड एंड देन आप वॉक करते करते यू रीच डैम स्क्वायर व्हिच इज द सिटी सेंटर ऑफ एम्स्टर्डम। Friday, it's not even a weekend. Look at the amount of people on the road. एम्स्टर्डम में ना पता है हर वक्त भीड़ होती ही होती है। अभी तो वो जो रूट पे जाएंगे ना हम, जो रोड जो स्ट्रेट जाती है टुवर्ड्स डैम स्क्वायर, उस पर आप देखना कितनी भीड़ होगी। वहाँ पे ना एक फ्रेंच फ्राइज वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ्राइज, फ्रिटन फ्राइज, आई डोंट नो, वैसे करके बहुत अच्छा है। मैं इतनी बार आया हूँ कि Are those French fries, Dutch fries or Belgian fries? बेल्जियन फ्राइज ही हैं। वो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे हर वक्त। So we just gonna go see if we can find something to eat. नहीं तो there is a coffee space जहाँ पे हम अपने हनीमून पे आए थे, जब तब हम वहाँ पे गए थे। उनके कॉफ़ी और उनके पैनकेक बहुत अच्छे थे। तो ये बैग जो मैं कैरी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल से तो कैरी कर रहा हूँ। दिस इज़ द बैग फ्रॉम कैरी प्रो, इंडियन ब्रांड है, अच्छे बैग्स बनाता है।
बट मेरे को ये बैग मोर देन द डिज़ाइन, आई थिंक आई लाइक द क्वालिटी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही फंक्शनल है। फंक्शनल बैग है। बट आई थिंक जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना हमारे साथ जो रहा है, वो चैलेंज है इस बैग का शेप। पहनने के बाद आप देखो इस बैग का शेप कैसे टेढ़ा हो जाता है। मैं इसको चाहे जितना सेट कर लूँ ये बैग टेढ़ा ही रहता है। मतलब बेसिकली बैग फंक्शनल तो है, बट कुछ डिजाइन में फॉल्ट है जिस वजह से वी डोंट रिकमेंड दिस बैग एट ऑल। आई मीन इट इज अ गुड बैग, आप स्टर्डी बैग है, सामान रख सकते हो, सब कुछ है, बट डिजाइन वाइज ओके ओके। But we in Amsterdam, we can find a different bag for you. या मतलब अगर आपको बजट में कोई बैग लेना आप ले सकते हो कैरी प्रो, बट डिज़ाइन ओके ओके है। तो जी वैसे तो आज 2 जनवरी है, बट 31 दिसंबर न्यू ईयर्स ईव पे यहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों ने हुड़दंग मचाया है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स नेदरलैंड्स में भी है, एम्स्टरडैम में भी, उत्तरेक्ट में, यहाँ पे रोटरडैम में। इट वाज रियली बैड। मतलब यहाँ की पुलिस जो है वो परेशान हो गई थी। लोग ना फायर क्रैकर्स एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं, घरों में मार रहे हैं, लोग के पुलिस के ऊपर मार रहे हैं। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था कि एम्स्टरडैम जैसी सिटी में भी ये हो रहा है। अब यहाँ की इमरजेंसी सर्विसेज को, यहाँ के लोगों को, रेजिडेंट्स को मैसेज डालना पड़ गया था कि अपने घर से बाहर मत निकलो और सिर्फ नेसेसरी चीज़ों के लिए ही डायल द इमरजेंसी सर्विसेज। मतलब बहुत बुरा हाल था। एंड दिस इज सैडली द रियलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ सिटीज़ हेयर इन यूरोप। बट इट फील्स बैड टू सी दिस हैपनिंग टू एम्स्टरडैम बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़। बट एटलीस्ट यहाँ पे हवा पानी साफ है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ यार, यू कैन ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप, यू डोंट नीड अ प्लास्टिक बॉटल और एन आर ओ। ये भी एक छोटी सी लग्जरी होती है चीज़ों की जो यहाँ पे है। यूरोप में क्वालिटी ऑफ लाइफ नो डाउट इट्स स्टिल यू नो अ लॉट बेटर, उस पर तो आप कोई डाउट नहीं कर सकते कभी भी। एंड जैसे हम अभी सुपरमार्केट में भी हैं, खाना गर्म कर रहे हैं, तो ये लोग खाना अगर आप इनको दोगे भी गर्म करने के लिए तो पहले प्लेट में निकालते हैं प्रॉपर, उसको फिर गर्म करके दे डोंट हीट इट अप इन प्लास्टिक। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द हेल्थ एंड जो भी होता है ना कि हाँ एनवायरनमेंट एंड आई मीन उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरे बगल से ये ट्रेन गई है। dirtier for sure, but look at it. Oh my god. You want to see how dirty the city is? कोने आपको ढूंढोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखो, I don't think आपको ढूंढना पड़ेगा, it's everywhere. और यहाँ पे वो फायर क्रैकर्स की बात कर रहा था ना, देखो हर तरफ रखे हुए हैं, साफ करने की भी जहमत नहीं उठाई। और ये देखो आप, ऐसा दिखता है एम्स्टरडैम। इधर पे आपके टूर्स होते हैं बहुत सारे, जो कैनाल टूर्स आप कर सकते हो। आई थिंक दैट वाज अराउंड 16 euros or 18 euros per person, if I am not mistaken. Expensive. Not very expensive. You can book your tours obviously on Klook. Of course, you can book your tours on Klook. We'll give you the link in the description. And if you want additional discounts, then you can use the discount code on the screen. तो जी एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको भी अब पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो। नेदरलैंड्स इज वन ऑफ द फ्लैटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्पेशली एम्स्टरडैम सिटी फ्लैटेस्ट है। इस चक्कर में यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा साइकिलिंग जो करते हैं ना यूरोप में, वो एम्स्टरडैम में होती है, मतलब नेदरलैंड्स में होती है। हार्लेम में, यहाँ पे रोटरडैम, लाइडेन, जितने ही बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे सब जगह आपको दिखेगा कि लोग बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं। दिस डिड नॉट हैपन सिंस एजेस। ये एक बहुत ही रिसेंट यहाँ पे चेंजेस हुए थे, जब जो लोग हैं वो बड़े परेशान थे बिकॉज एक्सीडेंट्स और ये सब बहुत ज़्यादा होते थे यहाँ पे। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए और एक्सीडेंट्स कम करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। एंड देन दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ हैविंग साइकिलिंग पाथ्स अक्रॉस ऑल द सिटी। एंड दैट इज हाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ मोर देन द पीपल देयर बाइसाइकिल्स है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस भी हैं पानी के ऊपर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कैनाल्स। उस चक्कर में देयर आर लॉट ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस द वाटर। सो वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रिजेस in Netherlands, highest number of cycles, more than the population of the people, Netherlands. यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड साइकिल के रूट्स मिलेंगे, साइकिल के ही प्रॉपर पार्किंग के स्पॉट्स मिलेंगे बेसमेंट में, मतलब भर के, जहाँ पे हजारों में साइकिल ही पार्क है। साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके कल्चर के लिए यहाँ पे ओवरऑल। बड़े बड़े लोग सूट पहन के साइकिल चला रहे होते हैं। हॉलैंड प्राइस स्टोर जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने यहाँ पे खाया है, 2-3 बार तो खाया है। तो देयर एवरेज देयर नॉट टू गुड। इनके सॉसेज जो है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। बट पहले क्या होता था ना, यहाँ पे लाइन लगी रहती थी और सब यहीं पे खड़े रहते थे। बट इन्होंने थोड़ा सा मैनेज करने के लिए लोगों को उस साइड पे मूव कर दिया है। एंड यहाँ पे मेन है, देन यू हैव टू स्टैंड इन क्यू ओवर देयर। हाँ, बिकॉज ये ओवरऑल ये जो रास्ता है ना, ये अपने आप में ही इतना ज़्यादा बिजी है। ये एनी टाइम ऑफ द डे यू कम है, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अक्रॉस दिस
पर्टिकुलर एरिया हेडिंग स्ट्रेट टू द डैम स्क्वायर। एम्स्टर्डम बिल्कुल नहीं बदला, बस गंदगी ज़्यादा हो गई है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि यार गंदगी हो गई है ये वो, बट डोंट टेक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग है बिफोर एंड नाउ। बट कोई भी इंसान जो पहली बार यूरोप आ रहा है उसको ये बहुत अच्छा लगेगा। यू माइट नॉट इवन लुक एट दीज थिंग्स, क्योंकि आपको आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, लोग, माहौल, पानी, साफ सफा, यही इतना ज़्यादा कहते हैं ना अट्रैक्ट कर जाएगी कि बाकी चीज़ों पर ध्यान ना जाए शायद। आप चलते हैं, लेट्स गो। ज़मीन पे अगर आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मैं किस कचरे की बात कर रहा हूँ। यूरोप को अब हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर झांक के देखना चाहिए। एम्स्टर्डम इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर द चीज़ एंड दीज वुडन बूट्स। चीज़ तो हमने खरीद लिया था फ्रांस से। They're selling Dutch tulips. This is one bag for 4.5, which is not bad, but I think this is what it looks like. प्याज लग रहा है यार ये तो। Last time मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था एम्स्टर्डम में, which by the way Pratik hates. We are outside Primark, and honestly Primark is really just H&M, and the quality and the prices are quite the same. It's just they have different variety. Quality and prices are same as H&M. So जी, we have finally reached the Dam Square here in Amsterdam. और हमारे पीछे, I think this is the palace of the royals here in the Netherlands. अब यहाँ पे रहते नहीं है वो, but this is a very significant spot. और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एरिया है ओवरऑल एम्स्टर्डम का। यहाँ पे हमेशा परफॉर्मेंसेज, कुछ ना कुछ अगर इम्पोर्टेंट है ना तो इधर ही हो रहा होता है, प्रोटेस्ट हो या जो भी चीज़ हो। भीड़ देखो आप कितनी ज़्यादा है, there's still so many people here. एंड जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, मैं अभी भी यही बोलूँगा, नाउ देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑफ सीजन, ऑन सीजन, लो सीजन, हाई सीजन। किसी भी सीजन में जाओ, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल। सो अगर जो सीजन आपको पसंद है, जस्ट ट्रैवल एंड यू विल एंजॉय द प्लेस। तो जी, आ तो चुका हूँ मैं एम्स्टर्डम का कैनाल एरिया, बट मूड ऑफ हो गया। एम्स्टर्डम में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंटायर यूरोप। पीछे भी देखो आप, वहाँ पे ऐसी बॉटल रखा है, somebody स्पीड देयर और व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट कि हम इतने सारे डॉक्यूमेंट, ITR, बैंक स्टेटमेंट, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट हमसे मांग के ये दिखाने के लिए आपने हमें बुलाया यार। तो यूरोप में आने के लिए 50 तरीके के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, अब देखने के लिए फिर ये मिलता है। आज से अगर 7-8 साल पहले की बात होती तो बात अलग थी। अब मुझे लगता है यूरोप रियली नीड्स टू फिक्स द प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग। We have finally reached one of the most famous spots here in Amsterdam. It's called Fibo. It is like a very quick, जैसे 7-Eleven होता है ना साउथ ईस्ट एशिया में, वैसे इनका Fibo होता है। You can quickly get fried stuff, by the way. You just have to pay by a card or cash। 1-1 यूरो के होते हैं। You tap and you pick it up. It's a very quick service. दिखाता हूँ आपको कैसा है। मेरे को आज भी याद है, मैंने 6 साल पहले जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मेरे को लगा था यार ये कितना सही है, 1-1 यूरो डालो और खाते जाओ। I'll show you, come. But I can try one. I don't mind trying one. It's not 2 to 3, it's 3 to 4. Alright, so all I need to do is just, जैसे ये है ना, ये चाहिए, कार्ड लगाया, ये प्रेस किया और ये मेरा मील जो है वो आ गया। This is how easy it is to get a meal. And So that's quick. it, you don't have to talk to anybody. And वहाँ शेफ जो है वो डायरेक्टली वहाँ से डाल रहे हैं, so all of this is fresh and warm. And yes, there's a little bit of space for you to sit and eat. But they also have burgers and wrap and fries and drinks also that you can take. Fried, and there is melted cheese with lot of spices. अच्छा है ना? पूरे एम्स्टर्डम में ना आपको बहुत सारे स्टोर मिलेंगे फॉर डच पैनकेक्स एंड नॉर्मल पैनकेक्स। हमें मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था अभी। वाइल वॉकिंग वी फाउंड दिस वेरी स्मॉल वियतनामीज रेस्टोरेंट, जहाँ से हमने मन किया तो हमने बान मी ले लिया है, जो हमें पड़ा लगभग 10 यूरो के आसपास। अब हम बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया को मिस कर रहे हैं, तो हमने बोला कि यार क्यों ना फिर ट्राई किया जाए बान मी। एंड दिस इज़ हाउ द बान मी लुक्स फॉर अराउंड 10 यूरोज।
इट इज़ क्रिस्पी, स्पाइसी, कोरिएंडर, बटर, चिकन का और पास्ते का जो टेस्ट है वो सब एक बार में बस्ट होता है मुंह में। अच्छा आ गया। So Ji, that was it from Amsterdam. I hope you all liked it. Tomorrow we'll take you to other spots that we personally like in Netherlands, like Zandam, Haarlem. देखते हैं क्या क्या cover कर पाते हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो please make sure that you like, and if you have any questions, you can obviously comment down below, and we'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.